Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Mava online digital platform. As you know, I am your science teacher, Vatsal Trivedi. So, guys, as you know that अभी हम लोग चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. So, at the previous lecture, we are already discussed on the concept time number 6. The topic is air pressure. Okay, so now again we are start of the particular topic which we are discussed on the previous subject. So regarding to some practice questions, we have to solve firstly, then after we are solving the concept time number 7. Okay, at available on your SB10 page number 44 on your supplementary book. So I hope you all have this supplementary book. So please open the page number 44. So first of all, we are solving some questions. Then after the solve and understood and discussed on the topic of air expand on heating. Okay. So अभी हम start करते हैं concept time number 7 से. So अभी first of all, as a daily review, we have to solve some practice question regarding to previous lecture. So let's start it. It is NCRT exercise to fill in the missing word in the blank space in the following statements. So if you have the book NCRT, please open, otherwise you can directly solve through this video. First of all, wind is blank air. So we know that the wind is a moving air. Okay, so answer is a moving. Next, NCRT exercise question number 3 on your page number 92. State the two experiments that made you think that air extracts the pressure other than those given in the text. So I will write two exercises. You have to write this all in your fair book. When we inflate a balloon after the contained amount of time, that will not inflate anymore. So at one point the balloon might burst, which is due to the air extending the pressure on the balloon. When the open the window panes on a windy days, the curtain tend to move. Okay, so the curtains tend to move. This movement is due to the pressure exerted by the wind on the curtains. ओके काफ़ी बार विंडोज खुल जाती है तब जो विंडो के ऊपर हमने कर्टेंस लगाए वो उड़ जाते हैं. ओके, सो इट इज ऑलरेडी ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर. सो ये दोनों क्वेश्चंस जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं और जो हम लास्ट में दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चन आप लोगों को एज अ फेयरबुक होमवर्क के अंदर लिखना है. होमवर्क एज होमवर्क फेयरबुक के अंदर आपको लिखना है. इट इज़ अ कंपल्सरी. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट हम चलते हैं द our concept time number 7 page number 44 SB10. Please open air expand on heating. Now here you see the title expansion of air on heating. यानी कि जब हम एयर को गर्म करते हैं तब उसके अंदर क्या क्या एक्सपांड होता है. इट इज एक्सपांड बाय द हीट. हम उसके अंदर हीट इंक्रीज करें तब क्या होता है, और हीट डिक्रीज करें रिड्यूस करें तब क्या होता है, वो हम आज देखने वाले हैं. So first of all, you have to open your supplementary book concept number 7, page number 944. First, observation for activity 8.5. So first, the balloon tied to the test tube. क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बलून को टाइट कर देना है. Then after, which was placed in the hot water become inflated, whereas the balloon of the test tube which has placed in ice water. Okay, so now क्या होता है वो हम देखते हैं. फर्स्ट, एयर एक्सपांड ऑन हीटिंग. क्या होता है कंक्लूजन ऑफ एक्टिविटी 5. एयर क्या होता है, एयर है वहाँ पे एक्सपांड हो रही है जो हीट है उसकी वजह से, तो बलून थोड़ा फूल जाएगा.
नेक्स्ट एक्टिविटी हम देखते हैं 8.6। द प्रिपेयर बैग अबव द कैंडल राइज अप वेयर इज द अनदर बैग डिपेंड्स। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या हो रहा है, वो हम देख रहे हैं। सो जो गर्म हवा है वो क्या करेगी, ऊपरी डायरेक्शन के अंदर जाएगी। तो जो जिस थैली के अंदर गर्म हवा है वो क्या करेगी, ऊपरी साइड जाएगी, और ठंडी हवा है वो नीचे की साइड आएगी। Now let's solve the practice question number 7.1 on your supplementary book page number 45 SB11. Observe the two bags placed on the balance and complete the table below. जो हमने एक्टिविटी अभी की है उसके रिगार्डिंग हमको यहाँ पे फिल करना है. So here in the table, first is a column activity, second observation, and third is a conclusion. So heating one of the paper bags by the keeping burning candle below it. So the paper bag above the candle is rises, and as a conclusion we can say that on heating uh, the air expand, occupy more space. So that's why warm water is lighter than cold water. So ये हमको उसका कंक्लूजन भी मिल गया, यानी कि इसका यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक पे कंक्लूजन की जगह एक्सपेंटेशन लिखा है. सो यू एक्सप्लेनेशन, तो यू हैव टू राइट एज अ कंक्लूजन इन दी योर सप्लीमेंट्री बुक. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप ये वीडियो के अंदर अभी ये क्वेश्चन होमवर्क में, सो आप ये क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो, जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो आंसर डायरेक्ट आप लिख सकते हो एज अ होमवर्क. नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग. अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है. व्हेन एयर इज हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट्स पार्टिकल्स बिकम वर्म्स. तो उसके अंदर जो कुछ भी पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होगा, गर्म हो रहे होंगे. सो एंड मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ मूवमेंट करने की ट्राई करेगा. सिंस दो सिंस द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे कीप अप मोर स्पेस. सो ये उसके बीच में ज़्यादा स्पेस हो जाती है. सो द एयर ऑक्यूपाइज द मोर स्पेस, तो वो ज़्यादा स्पेस कवर करेगी. हॉट एयर इज ऑल्सो लाइटर सिंस द लेस डेंस. वो क्या होता है, लाइट होता है कंपेयर टू कोल्ड एयर, बिकॉज ऑफ उसकी डेंसिटी कैसी होती है, कम होती है. सो इट इज लेस डेंस. सो हॉट एयर इज राइस अप, इसकी वजह से गर्म हवा जल्दी से ऊपर जाती है. एक्सट्रेट एज अ लो प्रेशर देन द कूलर एयर, कम प्रेशर में भी वो ऊपर चली जाती है, बिकॉज दे हैव अ लाइटर and the less dense. Now think that what causes of the balloon of inflate when the test tube placed in a head hot water. गर्म हवा के अंदर हमने टेस्ट ट्यूब के ऊपर जो बलून हमने लगाया था वो गर्म हवा के अंदर हमने डाल दिया, तो क्या हुआ था, वो इन्फ्लेट होता था. क्यों? बिकॉज इन द टेस्ट ट्यूब द placed in a hot water, the air particles inside the balloon is get heated up and expand, which is turned into the inflates the balloon. Now, why is the exhaust fan placed in a near the top of the kitchen? आपने देखा होगा कि एग्जॉस्ट फैन है वो हमारे किचन एरिया के अंदर ऊपरी साइड पे रखा होगा. क्यों? आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज अ एग्जॉस्ट फैन जो ज़्यादातर किचन के अंदर अवेलेबल होता है. सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एग्जॉस्ट फैन रिमूव्स द वार्म एयर बीइंग द जनरेटेड बाय द गैस स्टोव ऑन द किचन. क्योंकि किचन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ गर्म गर्म बनती है, तो उसकी जो गर्म हवा है वो बाहर निकालने में उसकी मदद करता है. सिंस द वार्म एयर इज अ लेस डेंस एज यू नो दैट देन कोल्ड एयर, it is rise up upwards and can be removed from the kitchen by the exhaust fan placed in a near top. ओके, तो गर्म हवा जो कुछ भी निकलती है ड्यूरिंग द जब मम्मी किचन के अंदर कुछ रसोई बनाती है, जब कोई गर्म चीज बनती है तो गर्म धुआं भी निकलेगा. सो इट इज अ वार्म एयर, सो उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगी.
And why is the air condition installed at the higher inner height of the temperature room? आपने कभी देखा है कि एयर कंडीशन नीचे की ओर लगा हुआ? सभी जगह पे एयर कंडीशन जो ऐसी होता है वो ऊपरी डायरेक्शन के अंदर ही लगा होगा. क्यों? बिकॉज cooled air is more dense than warm air. The air conditioner takes in the warm air at the height and cools it. The cool air moves down and cools the entire room. क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जो एयर कंडीशन स्टेक गर्म हवा है वो अंदर लेती है, क्योंकि गर्म हवा हमको मालूम है वो उसका वेट कैसा होगा, एकदम कम वेट की होगी. इसकी वजह से वो ज़्यादातर ऊपरी एरिया में ज़्यादा रहती है. सो एसी का जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो गर्म हवा एब्जॉर्ब करती है और ठंडी हवा रिमूव करती है. सो गर्म हवा ऊपर से जल्दी से एब्जॉर्ब हो सकती है. सो दैट्स वाई द कूलर एयर moves down and the cools air entire the room. Now the next, think that why is the heater installed in a lower height on the room? हीटर क्यों नीचे की साइड लगा हुआ था? हीटर आप देखेंगे तो हीटर कभी ऊपरी एरिया के अंदर नहीं होता है. बिकॉज द एयर इज वार्म बाय द हीटर इज लेस डेंस एंड कोल्ड एयर and thus the rise up thereby the heating is entire room. जो क्या होता है, हीट एयर है वो उसकी वेट कैसा होता है, एकदम हल्का वेट होता है, लेस डेंस होता है. इसकी वजह से वो जल्दी से हवा में ऊपर चली जाती है. तो उसकी वजह से जो हीटर होता है वो नीचे की ओर लगा होता है, ताकि वो पूरे रूम को, एंटायर रूम को गर्म रख सकते हैं. Now, at last, let's solve the practice question number 7.2 and 7.3. So, please open the practice question number 7.2. Yes, question is that to let hot air out of their houses, Seaman installed the exhaust fan near a window, while Amal installed the in on the wall near the ceiling. Which exhaust fan will let out hot air more effectively? एक कहाँ पे लगा रहा है, ऑन द सीलिंग, और एक कहाँ पे लगा रहा है, एग्जॉस्ट फैन नियर अ विंडो. So hot air rise up upwards since the lighter and less dense. So there will be more hot air near the ceiling when the compared to the window which is at a lower height. Hence the exhaust fan near the ceiling will let out hot air becomes hot air more effectively than the one near the window. सो वो क्या करेगा, गर्म हवा जल्दी से ऊपर चली जाती है, उसकी वजह से जो सीलिंग एरिया के अंदर जहाँ पे हमने एग्जॉस्ट फैन लगाया है वहाँ से गर्म हवा जल्दी से इफेक्टिवली यहाँ पे हमको बाहर निकलती हुई दिखाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A fire alarm usually detects the smokes in the case of a fire. Where do you think the fire alarm should be placed in a room? कहाँ पे लगाएगा, कहाँ पे आएगा? नियर द डोर, ऑन द फ्लोर, ऑन द वॉल और ऑन द सीलिंग. तो आई थिंक छत पे होना चाहिए. बिकॉज ऑफ वो क्या होता है, वार्म एयर होती है, वो जल्दी से ऊपर चली जाती है, वो हल्की होती है, उसकी वजह से. सो द करेक्ट आंसर इज ऑन द सीलिंग्स. Because of since hot air rise upwards and smoke will also rise up. So students, आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए ये बोलने चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन है वो आप एग्जैक्टली जो यहाँ पे वीडियो के अंदर मैं करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको करने ज़रूरी है. एज अ होमवर्क मुझे सेंड करो, और फिर से बता देता हूँ कि पहले से ही रेगुलर रहो. फेसबुक के अंदर आज के क्वेश्चन फेसबुक के अंदर लिख दिए, नेक्स्ट डे फेसबुक के अंदर लिख दिए. सो एट लास्ट कोई भी स्टूडेंट्स को पीडीएफ या एक्स्ट्रा कोई भी मटेरियल की ज़रूरत नहीं होगी. आपके पास अपना खुद के राइटिंग के अंदर सभी क्वेश्चन अवेलेबल होगी. ओके, सो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू. सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे. सो अभी के लिए कोई भी डाउट्स यहाँ तक आपको है, आप एनी टाइम कॉल करके पूछ सकते हो. इन सम स्पेशल केस कोई स्टूडेंट्स होमवर्क नहीं भेज पा रहा है तो आप मुझे कॉल और मैसेज कर देना ज़रूरी है आफ्टर द
गेटिंग वीडियो लिंक। ओके कि सर आज मैं होमवर्क दिस एंड दिस रीज़न की वजह से नहीं सेंड कर पाऊँगा या पाऊँगी। ओके सो आज हम यहाँ पे कंप्लीट करते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7.3 तक रखेंगे। सो अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस, बाय बाय, टेक केयर।